Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 8th of December 2020 Tuesday. Inspiration of the day is you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Serum set for deal with center soon. One of the biggest vaccine maker of the world, that is Serum Institute of India SII, which has applied to the regulator for an emergency use authorization for its recently developed Covishield vaccine, is now close to signing a supply contract with the union government. So ऑक्सफोर्ड इनिशिएटेड जो वैक्सीन थी दैट इज कोविशील्ड वैक्सीन उसके प्रोडक्शन के एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन के राइट इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास है. And the Serum Institute of India on Sunday has become the first indigenous company to apply to the Drug Controller General of India DCGI. It means अगर किसी भी pharmaceutical company को emergency use authorization EAU का license चाहिए, it means that particular pharma company needs to apply with Drug Controller General of India. So the Serum Institute of India has become the first indigenous company to apply for this EUA license for Covishield vaccine. So citing the reason of unmet medical needs due to the pandemic in the interest of public at a large, Serum Institute of India has requested the Drug Controller General of India to have the emergency use authorization license for Oxford developed Covishield वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19. और अगर आपको याद हो, एक दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन आर्म्स है यूएस फार्मास्यूटिकल जियान फाइजर की, उसने भी सिमिलर अप्रूवल के लिए इंडिया में अप्लाई किया था टू द सेम ड्रग रेगुलेटर. तो अगर हम फाइजर की बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ फॉरेन कंपनी और द इंडियन आर्म ऑफ यूएस फार्मास्यूटिकल जियान. ऑल्दो अगर टोटल कंपनीज की बात करें, ओवरऑल कंपनीज की बात करें तो फाइजर वाज द नंबर 1 कंपनी, बट इफ यू टॉक अबाउट द इंडिजिनियस कंपनी और द डोमेस्टिक कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज फर्स्ट कंपनी टू अप्लाई फॉर EUA license. And we all know that these 3-phase clinical trial of Oxford COVID-19 vaccine, that is Covishield, is being conducted by Pune-based Serum Institute of India, and that is co-sponsored by Indian Council of Medical Research. And based on phase 2 and phase 3 clinical trials, the Serum Institute with the help of ICMR will pursue early availability of the vaccine for India. हालांकि ICMR के अकॉर्डिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 40 मिलियन डोजेस मैन्युफैक्चर कर ली हैं, तो इट इज़ मोर लाइकली दैट सीरम इंस्टीट्यूट विल गेट दिस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लाइसेंस. And the vaccine is logistically feasible for distribution in the country's both urban as well as rural parts, as it can be stored at 2 to 8 degree Celsius. And the prices are likely to be approximately 250 per dose for vaccine. तो जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन चल रहा है सीरम इंस्टीट्यूट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, पीपल हु आर अवेयर अबाउट दिस मैटर आर सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर नेगोशिएशन or discussion is on final stage and most probably this could be done very soon. हालांकि कितनी डोजेस प्रोड्यूस करी जाएंगी, फेज मैनर में प्रोड्यूस करी जाएंगी या कोई और मेथड प्रोडक्शन का यूज़ किया जाएगा, इन सब फाइन डिटेल्स पर अभी कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया. बट एज पर द सोर्सेस द डोजेस around 60 million could be available soon once the company granted the particular license, and by January-February it is expected to have at least 100 million doses for Indian government if Indian government will choose to procure. और अगर जो डील चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो फाइजर के बाद में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया है. एंड साइमल्टेनियसली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया is negotiating a supply contract with union government as well. And this is the chart of estimated beneficiary in terms of preference and numbers. So approximately 7 million healthcare workers and frontline workers 21 million. Apart from this,
people above 50 years and people less than 50 years but with comorbidities. So, comorbidities, old age people, geriatric people, frontline worker, हेल्थ केयर वर्कर, इन सब को मिलाकर के अप्रॉक्सीमेटली जो एस्टिमेटेड बेनिफिशियरी हैं इन टर्म्स ऑफ मिलियन दैट इज 300. तो अभी रिसेंटली करेंटली इंडियन गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन बेनिफिशरीज के लिए कोविशील्ड की डोजेस चाहिए होंगी. तो अगर ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होता है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल स्टार्ट प्रोडक्शन विद अ वेरी फास्ट पेस. And after Pfizer and Serum Institute of India, Hyderabad-based Bharat Biotech has applied for an emergency use authorization for its investigational vaccine candidate Covaxin. तो हम ये कह सकते हैं कि 3 वैक्सीन इनिशिएटिव लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं जिसमें फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक के इनिशिएटिव हैं. करंटली भारत बायोटेक अपने जो फेज 3 के ट्रायल में है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 26,000 पार्टिसिपेंट्स हैं एंड एज पर दिस डेटा दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफिकेसी ट्रायल हेल्ड इन द कंट्री इंडिया. और जो फेज 2 और फेज 1 के डेटा थे ट्रायल के डेटा वो ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं एंड ऑल द रेगुलेटरी अथॉरिटी और द ऑर्गेनाइजेशंस आर कंटिन्यूअसली इन टच विद भारत बायोटेक फॉर इट्स वैक्सीन कैंडिडेट दैट इज कोवैक्सीन. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. टैक्समैन पुल्ड अप फॉर subpart declaration. So with the 3 weeks to go before Vivad Se Vishwas direct tax dispute resolution scheme window closes, Finance Secretary that is Ajay Bhushan Pandey and the Central Board of Direct Taxes CBDT Chairman PC Modi pulled up tax officers for dismal declarations in a meeting held last week. If you have remember, number of times we have discussed about this tax amnesty schemes जिसमें मैंने direct tax amnesty schemes और indirect tax amnesty scheme दोनों के बारे में ही डिस्कस किया और कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन सी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए. तो आज भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट आर द schemes that are actually prevalent in India or was prevalent in India for settling the tax related dispute in case of direct taxes as well as indirect taxes. Here we are talking about Vivad Se Vishwas tax dispute resolution scheme. आप मुझे comment section में लिखकर बताइए कि विवाद से विश्वास जो टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है और टैक्स एमनेस्टी स्कीम है ये डायरेक्ट टैक्सेस के लिए है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है. और इसके अलावा एक और कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट करी थी फॉर टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस. अब देख लेते हैं आज की न्यूज़ क्या है. एज पर टुडेज न्यूज़ द विवाद से विश्वास डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम डिक्लेरेशंस और declaration unders made this scheme were not even 10% of the potential level. तो अगर हम सीधे से सिंपल टर्म्स में बोलें तो ये स्कीम थी ये 3 हफ्ते पहले क्लोज हो चुकी थी बट अब उसकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में रियलाइज़ किया गया है कि इस पर्टिकुलर स्कीम जो लाई गई थी टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम ये एक सक्सेसफुल स्कीम के रूप में टर्न अप नहीं हो पाई. क्यों नहीं टर्न अप हो पाई? क्योंकि जितने भी डिक्लेरेशन हुए वो इवन 10% तक के भी डिक्लेरेशन नहीं हुए. जो भी पोटेंशियल लेवल था जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे थे उनके 10% भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं हुए. जो भी डिक्लेरेशन हुए थे वो बहुत डिसमिसल से इवन जो फाइनल पेमेंट्स हुए मेड आफ्टर डिक्लेरेशन दैट रिमेन द डिसमिसल. 10% अप्रॉक्सीमेटली 10% डिक्लेरेशन हुए लेकिन जो एक्चुअल डिसबर्समेंट हुआ जो फाइनल पेमेंट हुआ वो इस 10% के लेवल से भी कम था. बिल्कुल मिनिमल लेवल तक हुआ. एंड फॉर दिस द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन ऑफ CBDT हैज समन्ड द ऑफिसर्स फॉर दिस लो लेवल ऑफ डिक्लेरेशन as well as low level of final payment or disbursements. And apart from this, officers were urged to reach out the central public sector enterprises to settle the dispute under this particular Vivad Se Vishwas टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम. तो कई सारे ऑर्डर या सजेशंस भी दिए गए हैं ऑफिसर्स की वो कैसे इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं. जो नंबर 10% आया है इसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है. तो इसके लिए उन्हें अर्ज किया गया कि वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को
टारगेट करें. And apart from the other suggestion, the accountability and the responsibility has also been ensured. Tax officers were told that those displaying the subpar performance would be held accountable since the scheme was being monitored by प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द फाइनेंस मिनिस्टर्स. तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक ऑफिसर को टारगेट दिया गया है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट का स्कीम डिक्लेरेशन या जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है टैक्स रिलेटेड उनको रिजॉल्व करे. अगर इंडिविजुअल ऑफिसर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता या उसकी परफॉर्मेंस सब परफॉर्मेंस रहती है, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर ऑफिसर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. तो इस पर्टिकुलर स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, सीबीडीटी ने, या हम ये कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फोकस किया है इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड्स पे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कीम बहुत अच्छी होती है, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो स्कीम सक्सेसफुल या प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाता ऑन अ ग्राउंड लेवल. तो अभी के लिए जिस तरह का 10% का डिक्लेरेशन हुआ है और उसमें भी जो फाइनल पेमेंट हुआ है वो बहुत कम है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया है, ऑफिसर्स को पुल्ड अप किया है, उन्हें टारगेट्स दिए हैं, उन्हें सजेशंस दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं दैट हाउ दे कैन एक्चुअली इंक्रीज दिस quantum. And if even after these suggestions and the directions, if the officers are not or were not able to actually increase their performance or actually increase this particular quantum, then they will be held accountable by the authorities. And this is the timeline. The declaration window will closes at December 31 2020. तो जैसा मैंने बताया 3 हफ्ते बाद ये पर्टिकुलर स्कीम क्लोज हो जाएगी और अभी तक केवल 10% ही पोटेंशियल लेवल का डिक्लेरेशन हुआ है. लास्ट डेट फॉर पेमेंट इज, डिक्लेरेशन करने की जो डेट है वो दिसंबर 31 तक है. डिक्लेरेशन के बाद पेमेंट करने की डिस्प्यूट, जो टैक्स के डिस्प्यूट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, उसका पेमेंट करने की जो डेट है वो मार्च 31 2021 है. और अभी तक अगर हम बात करें नवंबर 17 तक तो अप्रॉक्सीमेटली 72,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है. एंड एज पर द गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 4 lakhs cases involving at least rupees 9.3 trillion are eligible for settlement under this Vivad Se Vishwas scheme. And net direct tax collection so far is 4.09 trillion, that is merely 31% of financial year budget target, that is 13.19 trillion. तो हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने बजट आने से पहले कोशिश करी है कि जितने भी टैक्स डिस्प्यूट हैं जिनको मैक्सिमम रिजॉल्व किया जा सकता है टू नेगोशिएशंस और दीज टाइप्स ऑफ स्कीम्स, उनको रिजॉल्व कर लिया जाए और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज किया जा सकते हैं. हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के जो कॉफर्स हैं उनको फिल किया जा सके फॉर अपकमिंग ईयर्स बजट. बेसिकली जितनी तरह की टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं इनमें होता क्या है कि जो टैक्स डिस्प्यूट चल रहा होता है अथॉरिटीज़ के बीच में और टैक्स पेयर्स के बीच में, से अगर 100 करोड़ का टैक्स डिस्प्यूट है, अथॉरिटी से कह रही है कि इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने अपना टैक्स इवेट किया है, टैक्स हाइड किया है, टैक्स पेमेंट नहीं किया है, और जो टैक्स पेयर है वो कह रहा है उस पर 100 करोड़ का टैक्स पेमेंट ड्यू है ही नहीं, उसकी अर्निंग इतनी है ही नहीं, दैट इज एक्चुअली एग्जैजरेटेड अमाउंट. तो इस तरह से कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं. तो इन डिस्प्यूट्स की वजह से गवर्नमेंट की भी कॉस्ट बेयरिंग होती है, जो टैक्स पेयर होता है वो भी हैरस होता है. तो इससे क्या होता है गवर्नमेंट की लिटिगेशन कॉस्ट जाती है, उसके ऑफिसर्स लिटिगेट करते हैं, नेगोशिएशन आर्बिट्रेशन में बहुत सारी कॉस्ट जाती है. तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस तरह की स्कीम एमनेस्टी स्कीम लाती है जिसमें बोथ टैक्स पेयर्स एज वेल एज द टैक्स अथॉरिटीज़ resolve their issues by settling the middle amount, जिसमें जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टाइम दिया जाता है कि अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का 100 करोड़ का कुछ से 90% 80% अगर वो टैक्स के फॉर्म में पे कर देते हैं तो उनके फाइन को वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दिया जाएगा और उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा. इट मीन्स उनको किसी भी तरह के लीगल पेनाल्टीज नहीं इम्पोज करी जाएंगी अगर उस पर्टिकुलर स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अपना जो लेफ्ट अमाउंट है, जो अनपेड टैक्स है, उसको पे कर देते हैं. तो इस तरह से टैक्स एमनेस्टी स्कीम अप्लाई करी जाती है और जिसमें टैक्स पेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना टैक्स पे कर दें तो उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का हैरेसमेंट, लीगल प्रोसीडिंग्स, फाइन, पेनाल्टी, इस तरह की कोई भी एक्शंस उनके अगेंस्ट नहीं होंगे.
हालांकि अब देखना है जो भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं कितने सक्सेसफुल रहते हैं और इवेंचुअली December 31 तक कितने डिक्लेरेशन होते हैं और डिक्लेरेशन के बाद March 31 तक कितने एक्चुअल पेमेंट होते हैं अंडर दिस टैक्स एमनेस्टी स्कीम विवाद से विश्वास। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। IRDAI not in favor of mandating insurance. IRDAI stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India. So, Insurance Regulatory and Development Authority of India or the IRDAI is a government body responsible for regulating and developing the insurance industry in India. And it is one of the apex body for regulations and development of insurance industry. And this body was established by an act of parliament known as इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। ये जो बातें मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसको एक्ट के तहत इस पर्टिकुलर बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था कि ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लीगल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसी बॉडी है ये। तो आप याद रखेंगे IRDA को एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज़ वन ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI इज इन हैदराबाद तेलंगाना। और 2001 से पहले इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। तो कंफ्यूज नहीं होंगे हेडक्वार्टर को लेकर के। बेसिक फंक्शन क्या होता है IRDA का? इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन इंडिया सो दैट इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैन फ्लरिश। And apart from this, it gives the registration certificate to insurance company. It also engage in the renewable modification cancellation of this registration. It also creates the regulations to protect the policyholders' interest in India. So apart from protecting the rights of policyholder, registration of insurance companies is also the responsibility or the authority of Insurance Regulatory and Development Authority of India. अब देख लेते हैं बेसिक न्यूज़ क्या है आज की। तो इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट इन द फेवर ऑफ मैंडेटरी इंश्योरेंस डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ मैसिवली अंडर इंश्योर्ड कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंश्योरेंस है वो बहुत ही कम है, जबकि अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में अदर कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया के काउंटर पार्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर इंडिविजुअल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया में इंश्योरेंस लेने की जो प्रेफरेंस है कंज्यूमर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दे डू नॉट लाइक टू टेक द इंश्योरेंस और इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था दैट देयर शुड बी मैंडेटरी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस policies should be there so that this massive under insured country can be actually turned up into properly insured कंट्री। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंश्योरेंस को लोग प्रेफर नहीं करते हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। तो इस पर्टिकुलर टैक्स से निकलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली प्लानिंग और कुछ इवन एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा है कि दैट गवर्नमेंट शुड मैंडेट, गवर्नमेंट और ईदर द रेगुलेटर, हु इज रेगुलेटर? IRDAI। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि चाहे गवर्नमेंट और चाहे IRDAI मैंडेटरी कुछ टाइप के इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर दे। And there is a demand for mandating title insurance, drone insurance and household insurance. तो कल नेशनल इंश्योरेंस एकेडमीज की 16th एनुअल इंश्योरेंस समिट हुई थी जिसमें कई सारे एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ लाइफ मेंबर्स भी थे, IRDAI के नॉन लाइफ मेंबर्स ने, सबने अपने अपने ओपिनियन दिए और उस ओपिनियन में निकल कर यह है कि आइदर regulator or the government should mandate certain types of insurance so that maximum consumers or the households in Indian economy can actually be insured from uncertainty. However, अभी तक जो IRDAI है वो इस पर्टिकुलर मैंडेटरी इंश्योरेंस के और यूनिवर्सल इंश्योरेंस के फेवर में नहीं है। The example before us is motor third party insurance which is mandated by law but still there are huge issues of under insurance, one of the non life member of IRDAI। तो काफ़ी सारे deliberations हुए जिसमें कुछ जो experts हैं they were actually favoring the mandatory insurance, कुछ ने इस particular mandatory insurance के अगेंस्ट बोला, जिसमें IRDAI के का अपना ओपिनियन ये है कि जो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो भी तो मैंडेटरी है एज पर द लॉ,
बट अगर हम उसमें भी डेटा देखें तो बहुत ज़्यादा हमें अंडर इंश्योरेंस देखने को मिलेगा इनटू द मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो IRDAI का ये कहना है कि इवन दो अगर गवर्नमेंट मैंडेटरी कर भी देती है कुछ टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज को, तो इट इज़ नॉट लाइकली, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस अंडर insurance data will increase. The regulator is now encouraging state to share the details of uninsured vehicles so that reminders can be sent to the vehicle owners. तो कई सारे steps भी लेने पड़ रहे हैं, जबकि as per the law मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, बट फिर भी इस पर्टिकुलर एरिया में भी जो अंडर इंश्योरेंस है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो IRDAI का ये कहना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को मैंडेटरी कर भी देते हैं, then too it is not 100% guarantee that the people will avail the benefit or will take the policy. And if we talk about the health insurance, the veteran said that industry need to address the underlying concern of trust deficit, जो कि health insurance industry में बहुत ज़्यादा prevalent है, जिसमें इंडिविजुअल्स के कंसर्न रहते हैं कि जब आप मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तब वो कुछ और बताते हैं आपको पॉलिसी बेचते समय, और जब एक्चुअल में आप रीइंबर्समेंट लेते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ कुछ और होती हैं। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको रिड्यूस करें रादर देन हम हेल्थ इंश्योरेंस को मैंडेटरी बना, क्योंकि मोटर के केस में हमने देख लिया है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, हाउस होल्ड इंश्योरेंस, ड्रोन इंश्योरेंस, टाइटल इंश्योरेंस इस सबको मैंडेटरी बना रहे तो देयर आर नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस दैट नीड टू बी फॉलो। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कौन सी डिजीज़ आनी है, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, कितना पेमेंट होगा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेशली यूज टर्म्स, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं उनका क्या है, पोर्टेबिलिटी एंड माइग्रेशन को लेकर के कई सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसकी वजह से इंश्योरेंस देने वाली कंपनी और जो इंश्योरेंस लेने वाला इंडिविजुअल होता है उसके बीच में बहुत ट्रस्ट डेफिसिट होता है, और इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ही इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम मेकिंग certain types of insurance mandatory, few experts are saying that IRDA or the government, even the union government as well as the state government, should work in tandem in order to reduce the flaws that is actually existing into current insurance industry. और अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लेते तो देयर आर चांसेस दैट इंश्योरेंस नंबर विल ऑलरेडी और विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड। अब देख लेते हैं some other news clips. RIL raises $1.4 billion in overseas debt. So India's largest corporate, that is Reliance Industry, has raised approximately $1.4 billion to prepay its existing foreign loans, and approximately 14 international banks have signed up for this transaction with RIL. तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 1.4 बिलियन का ओवरसीज डेट रेज किया है इन ऑर्डर टू प्रीपे इट्स ऑल एग्जिस्टिंग फॉरेन लोन, और जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 14 इंटरनेशनल बैंक्स ने साइन किया है। और हम सभी को पता है दिस ईयर RIL बीइंग हाईएस्ट डेट फंड रेजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक्स अमंग द अदर इंडियन कंपनीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, who's managing COVID-19 best? Study says Northeast, Bihar and UP. According to the study that is conducted by SBI Research, Northeastern states have topped the list in terms of management of COVID-19 pandemic. तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो COVID-19 को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, they have topped this list of managing COVID-19 pandemic. And after Northeast, Bihar and Uttar Pradesh were the second and third marker according to the SBI research for the better management of COVID-19. And if we talk about the bottom three, that was Rajasthan, Maharashtra and Himachal Pradesh. हालांकि स्टडी ने भी पाया कि इंडिया इज एबल टू फेयरली manage the economy as well as the controlling the virus spread into this COVID-19 period. The study has also ranked the states on the basis of more two parameters. और कौन से दो parameters हैं? Macro parameters including fiscal deficit and consumer price inflation, and
परफॉर्मेंस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो मैनेजमेंट के बेसिस पर लिस्टिंग हुई है, इसके अलावा इकोनॉमी के बेसिस पर भी लिस्टिंग करी है एसबीआई रिसर्च ने, जिसमें देखा कि कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी मैनेज किया है और जो सेंटर की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया। तो मैक्रो इकोनॉमी के टर्म्स में नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स हैं। बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल वर द बॉटम 3 स्टेट्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उन्होंने कोविड मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमी दोनों के ही केस में टॉप किया। इट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर वेल मैनेजिंग द COVID-19 in comparison to the other states of India. That's all for today, student. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.